आज का रिकॉर्डेड मिलेगा सर? हाँ, ऑन कर दिए हैं आप, ठीक है। सो पेज नंबर 29, X linked inheritance. So this X linked inheritance is coming under this 3.0, 3.10, that is the sex linked inheritance. So what is the meaning of a sex linked inheritance? So where sir both X and Y chromosomes are required. So gametic cells. Yes, anyway, gametic cells are going to carry all chromosomes, no? Or only sex chromosomes they are going to carry? Only sex. Oh, that is a problem. If they are carrying only sex chromosomes, then the next generation, from where they will get information about the other things? There are the 23 pair of chromosomes. If only one pair of chromosomes will go to the next generation, is it sufficient? Because the 23rd pair is the sex chromosome. That is, if it is XX, it is female, and if it is XY, it is male. Okay, so this gametic cells, whether they are, how many chromosomes they will carry? Gametic cell 23. 23 chromosomes. Anyone else? आपको लगता है ये सही आंसर है या गलत आंसर है? क्या गैमेटिक सेल्स को 23 क्रोमोसोम्स कैरी करने की जरूरत है, या जस्ट एक क्रोमोसोम कैरी करने से हो जाएगा? सोचिए। सर करना पड़ेगा सर, क्योंकि आगे के जनरेशन में सर बस गैमेटिक सेल का जरूरत थोड़ी ना होता है सर, बाकी 23 पेयर्स भी तो चाहिए। और सबका क्या कहना है? व्हाट प्रियतोषी इज टेलिंग इज करेक्ट? जब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ह्यूमंस में, और आप एक ही पेयर अगले जनरेशन में भेजोगे, तो बाकी 22 क्रोमोसोम्स कहाँ से आएगा भैया? किसी से उधार तो नहीं मांग सकता, पेरेंट्स से ही तो आएगा। तो पेरेंट्स के जो गैमेटिक सेल्स हैं, उनमें 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मेल साइड एंड 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द फीमेल साइड कंट्रीब्यूट होगा, तब फिर जाके जो नया जनरेशन बनेगा 46 क्रोमोसोम्स उसमें रहेगा। ठीक है, तो जब हम लोग बोलते हैं कि इट इज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, what are the sex chromosomes? These are the chromosomes which are going to determine the sex of the individual, whether it is the male or the female. Okay, so in our that figure karyotype, okay, आप देखिए फिगर को, देखिए आपको फिर से थोड़ा क्लैरिटी आएगा। पेज नंबर 24 देखिए आप, पेज नंबर 24 में कैरियोटाइप है। ये कैरियोटाइप में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन सा है? नंबर बताइए हमको, कौन सा नंबर वाला क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है? सर 23rd। करेक्ट, 23rd। क्योंकि 23rd वाला जो आप देख रहे हैं, जो कि पर्पल शेडेड है, 2 सर्कल बना हुआ है, अगर वो फीमेल है तो XX क्रोमोसोम रहेगा, और अगर वो मेल है तो उसमें XY क्रोमोसोम रहेगा। Y क्रोमोसोम आप देख रहे हैं पीला जैसा बड़ा छोटा जैसा क्रोमोसोम है। ठीक है,
तो फर्स्ट क्रोमोसोम से 22nd क्रोमोसोम जो इसमें आप देख रहे हैं फिगर 3.2 पेज नंबर 24 देखिए, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 जो है इसका कुछ फंक्शन है कि नहीं है? हाँ सर, इसके अंदर जो डीएनए होगा उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि आने वाला पीढ़ी कैसा दिखेगा। सो दीज क्रोमोसोम्स आर नोन एज सर ऑटोसोम। ऑटोसोम्स। You guys are not सर माइक revising. ऑन नहीं हो रहा था मेरा, क्लिक कर रहे थे हो ही नहीं रहा था। You see, you guys are not revising. You have to revise. नहीं तो हम क्लास में कितना भी एक्सप्लेन करें, आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा क्लास अटेंड करके. You have to revise. Okay, and end of the week I will take the test for chapter number 1, that what we have already covered. Okay. सर oral टेस्ट या रिटर्न? No, written test है. Because you don't have any oral exam, that is only in practical. Okay, exam will be theory, exam will be written only. We will be doing written. I will ask everything in that one. Okay, according to your board paper only I will ask questions. That is multiple choice, say definitions, match the following. Okay, and long type diagram based questions, all I will ask in that. So prepare well. Don't, it is not like it is 5-10 minutes business. You have to prepare thoroughly. All possible questions that can be framed from this chapter I will ask, and you have to write. Okay, after you write you will take the picture properly, you will take the photo and you will upload. Okay, I will put that in the Google Classroom and I will कैमरा भी ऑन रहेगा क्या? कैमरा देखिए वो आपके ऊपर है ना. ये आपके ऊपर है. आप टेक्स्ट बुक खोल के आंसर करोगे तो आप अपने आप से चीटिंग करोगे, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है. वो चीज़ आप मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम ये 10th क्लास का एग्जाम मैं तो करेक्ट करने वाला नहीं हूँ. आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर भी मैं सेट करने वाला नहीं हूँ. तो आप अपने तरफ से, अपने आप की तरफ से फेथफुल रहिए तो ठीक रहेगा. अगर नहीं आंसर कर पा रहे हैं छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं. क्या होगा, हम आपको पीटने के लिए थोड़ी आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको जो है अपने तरफ से आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप जो आंसर कर सकते हो वही करो, ये बहुत ज़रूरी है. बी फेथफुल टू योर सेल्फ. उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, उसमें क्वेश्चन आएगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. मुझे भी तो फीडबैक समझ में आना चाहिए कि बच्चा कहाँ नहीं समझ रहा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है. तो अगली बार जब हम लोग इसको रिवीजन के स्टेज में जाएंगे तो मुझे भी एक फीडबैक रहेगा कि हाँ बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उन जगहों पे स्ट्रेस किया जाएगा. लेकिन आप अगर चीट करोगे तो ना आपको कोई फ़ायदा होगा, ना मुझे कोई गाइडेंस मिलेगा कि कहाँ पे जो है बच्चे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे उनको ठीक करना है. ठीक. सो सैटरडे को सर कैमरा ऑन करने पर ना फिर तो जो है ना फोटो खींच के मीम बना देता है हम लोग का. ओके, डोंट डू ऑल दोस थिंग्स. ओके, बट इम्पॉर्टेंट यही है कि देखिए वो कैमरा ऑन रहेगा नहीं रहेगा वो सब अपने आपके ऊपर है. बट क्वेश्चन पेपर विल बी देयर. गूगल क्लासरूम एक हम बनाएंगे, गूगल क्लासरूम में आप उसको सबमिट करेंगे. आई विल करेक्ट दोज क्वेश्चन पेपर्स. ओके, इसीलिए आप उसके लिए प्रिपेयर कीजिए. ओके, उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए. दैट इज योर चैप्टर नंबर 2 जो हमने कंप्लीट किया है, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए आप. ठीक है. सो नाउ हियर X-linked chromosomes. There are the two types of chromosomes. One is the autosomes, that is the chromosome number 1 to chromosome number 22. Okay, and the chromosome number 23 is the sex chromosome. It is also known as the allosome. ठीक है, टेक्स्ट बुक में है, हमने पढ़ाया है, आपको रिवाइज करना है. रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, रिवाइज कीजिए. चलिए, अब हम आते हैं इसमें कि व्हाट इज दिस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. जो क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे हैं, सॉरी, जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे हैं, यानी या तो एक्स क्रोमोसोम पे या तो वाई क्रोमोसोम पे. ओके, उनका इनहेरिटेंस जो है
थोड़ा अलग रहेगा। इसके पहले हमने देखा कि कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, स्मॉल आर इज डोमिनेंट और रिसेसिव, Recessive, sir. रेसेसिव, रेसेसिव, कैपिटल इज डोमिनेंट, है ना। डोमिनेंट। सो ये तरीके से हम लोग एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का नहीं करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये अलग टाइप का क्रोमोसोम है। ओके, दिस आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, इनका इनहेरिटेंस का पैटर्न अलग रहता है, इसीलिए इसको हम लोग अलग से देख रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है ब्लू बॉक्स में, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज द अपीयरेंस ऑफ ए ट्रेट which is due to the presence of an allele exclusively either on the X chromosome or on the Y chromosome. ठीक है, so it is the appearance of a trait which is due to the presence of an allele. Okay, ये जो एलील है that is the alternative form of the gene. सर ये कैपिटल आर और स्मॉल आर तो जीनोटाइप है ना? जीनोटाइप है। तो सर और सेक्स क्रोमोसोम भी तो सर जीनोटाइप में आएगा ना? क्रोमोसोम है वो, आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज नॉट क्रोमोसोम, नो। हाँ सर, लेकिन सर ये सेक्स क्रोमोसोम का जो इनहेरिटेंस बोले आप स्मॉल आर और कैपिटल आर में नहीं दिखते, वो भी तो जीनोटाइप ही है ना? देखो जेनेटिक लेवल पे दिखते हैं ना सर? देखो देखो देखो, कैपिटल और आर और स्मॉल आर क्या है? व्हाट आर दिस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर? कैपिटल आर डोमिनेंट है और स्मॉल आर हाँ वो रेसेसिव ठीक है, बट व्हाट इज इट कॉल्ड? इज इट जीन? सर एलील होता है। हाँ, एलील, एलील, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ओके, जिसमें कि जब ये एलील डोमिनेंट होगा तो कैपिटल में लिखेंगे, जब रेसेसिव होगा तो स्मॉल में लिखेंगे। ठीक, दीज आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन। व्हाट इज एक्स एंड वाई? सर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, यस, दे आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम में क्या एक ही जीन होता है? नहीं सर। कई जीन, नहीं सर। हजारों जीन्स रहते हैं, एक क्रोमोसोम में 1000 जीन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई जीनोटाइप नहीं है, एक्स और वाई क्रोमोसोम है। ओके, और जब हम लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअल इज हैविंग एक्स वाई, okay, so it is male, so XY you can say, in that case you can say is the genotype. Okay, that is going to tell that is the male. ठीक है, so this is the chromosome whereas these are the alleles. Okay, now here in the sex linked inheritance, what is the important point? That the appearance of a trait is due to the presence of an allele exclusively either on the X chromosome or the Y chromosome. ये X और Y क्रोमोसोम छोड़ के और क्या है क्रोमोसोम्स? सर ऑटोसोम्स है, ऑटोसोम्स है। 22। तो अगर वो ऑटोसोम्स पे वो जीन रहेगा, वो एलील रहेगा, तो वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं होगा, यही ना, यही तो मतलब हुआ। ओके, इसको पढ़िए आयुष 1, इसको पढ़िए। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज द Sex-linked inheritance is the appearance of a trait which is due to the presence of an allele exclusively either on the X chromosome or on the Y chromosome. Y क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो है कोई भी ट्रेट, ओके, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एलील एंड दैट एलील इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली, और किसी क्रोमोसोम में नहीं मिलेगा, या तो वो एक्स में रहेगा या तो वाई क्रोमोसोम में रहेगा, तभी हम लोग उसको बोलेंगे कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। ओके, अब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम लोग देखते हैं, यानी एक्स क्रोमोसोम, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। So there are some quite a good number of genes are there on the X chromosome.
इसमें टिपिकल दो जेनेटिक डिसीजेस का डिस्क्रिप्शन है आपके टेक्स्ट बुक में। एक है कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा है हीमोफीलिया। ओके, कलर ब्लाइंडनेस का क्या मतलब होता है कि द पर्सन कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरी मच डिस्टिंक्ट कलर्स लाइक रेड एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन तो कोई भी आसानी से फर्क बता देगा, ये दोनों ऐसे डिस्टिंक्ट कलर को भी ये जो कलर ब्लाइंड पर्सन है उसको फर्क नहीं दिखाई देता है दोनों में, वो है कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा जो एक्स लिंक्ड डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है, वो है हीमोफीलिया। हीमो यानी जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन, हीमो यानी खून से संबंधित। ओके, हीमोफीलिया यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉट डिसऑर्डर। ओके, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, रेयर डिसीज है। ये दोनों ही जेनेटिक डिसीजेस हैं और ये जेनेटिक डिसीजेस एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं, इसीलिए ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस फॉलो कर रहे हैं। इसमें एक जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों ही जो डिसीजेस हैं, ओके, these are due to recessive genes। ओके, क्या मतलब हुआ इसका? अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो अगर हम उसको सी, ओके, अल्फाबेट सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, कलर ब्लाइंडनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट सी, सो शुड आई पुट कैपिटल सी और स्मॉल सी? सर रेसेसिव है तो स्मॉल सी यूज होगा। स्मॉल सी। ओके, और जो नॉर्मल है आदमी, जिसको रेड एंड ग्रीन कलर में फर्क पता चलता है, ओके, दैट एलील वी विल शो इट एज द कैपिटल सी, डोमिनेंट। क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना कि कलर ब्लाइंडनेस एक रेसेसिव जीन है। ओके, सिमिलरली हीमोफीलिया is also caused due to recessive gene। okay, now this recessive gene, because these are carried by the recessive gene, इसीलिए ये कॉमन नहीं है, ये दोनों डिसीज कॉमन है। आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस उतना कॉमन नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग का डिसऑर्डर उतना कॉमन नहीं है। अगर ये डोमिनेंट जीन होता तो ये डिसीज भी बहुत कॉमन होता। ओके, बट दैट इज नॉट द केस। चलिए, तब इसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जीन जाता कैसा है? अगर ऐसा है कि समझिए कि मेल, ओके, यानी फादर साइड इज कलर ब्लाइंड, ओके, तब हम लोग जो फादर है उसके सेक्स क्रोमोसोम्स क्या क्या होंगे? मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या रहता है, एक्स एक्स या एक्स वाई? Already I told here, in male what chromosomes are there? Sex chromosomes X Y। ओ, कट गया।
So suppose the male father is the colorblind. Okay. So for the male, what are the sex chromosomes? X, Y, X, Y. So let us make one Punnett square. सर आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है सर. Sorry. We'll make one Punnett square. अभी हमारा मेन मकसद क्या है कि अगर फादर कलर ब्लाइंड है, मेल इज कलर ब्लाइंड और मदर सर यार is normal. Okay, female is normal. Then what type of children they will have? Whether they will have colorblind children or not, whether all of them will be colorblind, whether some of them will be normal. ये question. Okay, ये जानना चाहते हैं. Okay, so male में जो है कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं? XY सर. Please answer. My voice is सर ये बॉक्स क्यों बनाया सर? सर सर XY रहता है. सर बॉक्स क्यों बनाया? सर को समझ नहीं आया सर. ओके, मेरा ईयरफोन दूसरे जगह था और मैं ओके, मेरी आवाज तब नहीं आ रही सर अब होगी. आवाज सही सर. हाँ, मेरी आवाज हाँ बहुत सर, दूर से. अब आ रही है सर. हाँ अरे सर, हाँ यार, सर. मेरा भी यार, मैं ईयरफोन लगाया था, बाद में ईयरफोन लगाना भूल गया. ठीक है, तो सर इससे पहले जो आप पढ़ा रहे थे वहां पे डिस्कनेक्ट हो गए थे. हाँ कुछ हाँ, लिखे थे वो साइड में, समझ नहीं आया. ये सेम ही चीज है जो कि हम यहाँ पे बता रहे हैं. बड़े दिस पार्ट इज देयर, नो द सेम थिंग हाँ ओनली. सर. सर मेल तक तो सर समझ में आता, उसके बाद फिर हाँ क्या लिखे थे नहीं. हाँ, वही सर वही स्क्रीन देख. रिकॉर्ड होता है. हाँ, हम इसको रिपीट कर रहे हैं. देखिए, अपना मेन मकसद क्या है यहाँ पे जानना कि अगर फादर कलर ब्लाइंड है और मदर नॉर्मल है, तो क्या उनके जो बच्चे होंगे क्या वो सभी कलर ब्लाइंड होंगे या इनमें से कोई नॉर्मल भी होगा? तो ये एक चिंता होता है ना कि भाई फादर कलर ब्लाइंड है तो क्या क्या होगा इनका, मतलब वेदर दे विल हैव कलर ब्लाइंड चिल्ड्रन और नॉट. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट? तो हम लोग एक पनेट स्क्वायर बनाते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे कि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हैं? एक्स एंड वाई. ओके, और फीमेल में क्या सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं? एक्स एंड एक्स. ठीक है, सबसे पहले ये लिख दिए. उसके बाद क्या है कि हमको पता है कि मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है, और ये जो कलर ब्लाइंड वाला जो जीन है वो किस क्रोमोसोम पे होता है? सर रेसेसिव में होता है. हाँ, वो रेसेसिव जीन है. इट इज ए रेसेसिव एलील, बट इट इज प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम. तो हम क्या करेंगे, ये जो मेल का एक्स वाई क्रोमोसोम है ना, इसके एक्स के ऊपर क्योंकि वो डिफेक्टिव जीन है तो उसको एक मार्किंग हम लोग इस तरीके से लगा देंगे कि इसके ऊपर एक छोटा जीरो जैसा बना देंगे. ओके, जस्ट लाइक सर सेंटीग्रेड. आपको सर पता कैसे चला कि सर एक्स के ऊपर होगा वो डिफेक्ट या वाई के हाँ, ऊपर? ये जो है ये ऐसे पता चला कि जो आदमी कलर ब्लाइंड है उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया, उसका जो क्रोमोसोम्स है उसका सीक्वेंस जो है उसको मैच किया गया नॉर्मल के साथ, और जब पता चला कि कहाँ डिफरेंस है
तो देखा गया कि एक्स क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो कि नॉर्मल के साथ डिफरेंट है इस कलर ब्लाइंड पर्सन में। ठीक, सर तब मतलब वाई भी हो सकता है ना सर डिफेक्ट? नहीं, वाई के ऊपर नहीं है ये जीन हमेशा सर ही ना। मतलब सर ये डिफेक्ट हर केस में एक्स के ऊपर ही होगा या फिर वाई के ऊपर भी हो सकता है ये ये डिफेक्ट? किसी और जीन के, किसी और क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, ये केवल एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन पाया जाता है जो कि कलर ब्लाइंडनेस जिसके कारण होता है। ओके, क्योंकि आप देखिए जो ऑटोसोम्स हैं 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं जिनमें कि नॉर्मल बॉडी फंक्शन के हर चीज उसमें वो जीन्स हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनमें से नॉर्मल फंक्शन में भी कुछ जीन्स हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि बताते हैं कि जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो कैसे होना चाहिए। तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन पाया गया, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये ऐसा नहीं कि बस हवा में सोच लिया लगा दिया, वैसा नहीं है। ओके, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो हमको ये पता है कि मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है क्योंकि उसको दिखता नहीं, रेड और ग्रीन के बीच में वो फर्क नहीं कर पाता। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई लिखा उसका क्रोमोसोम, और क्योंकि ये कलर ब्लाइंड है तो एक्स के ऊपर हमने एक तो डिग्री सेंटीग्रेड टाइप का एक तो जीरो लगा दिया। ओके, अब ये बताइए कि ये जो मेल है इसके जो गैमीट्स बनेंगे उसमें से हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट्स तो हैप्लॉइड होते हैं, तो यस सर। half of the person's gametes will have this X0 क्रोमोसोम और दूसरे हाफ जो हैं इस गेमिट्स में Y क्रोमोसोम रहेंगे। करेक्ट, ये वाला पॉइंट आप सब एक्सेप्ट कर रहे हो? ऐसे नॉर्मल डिप्लॉयड है, ह्यूमंस आर डिप्लॉयड नो, हमारे पास दो सेट्स है 46 क्रोमोसोम्स, तो XY हर सेल में वो जो मेल है, मेल के हर सेल में आपको XY क्रोमोसोम मिलेगा। लेकिन जब आप गैमिट्स की बात करेंगे तो गैमिट्स में या तो एक्स रहेगा या तो वाई रहेगा। करेक्ट, केवल हाफ ऑफ दैट विल बी देयर। तो एक्स में डिफेक्ट है इसीलिए X0 हमने लिखा, वाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम लिख दिया, उसके बाद उसका गैमिट्स में क्या रहेगा वो लिख दिए। सेम चीज हम लोग फीमेल के साथ करेंगे, फीमेल तो नॉर्मल है इसीलिए इसमें जो भी एग सेल बनेगा सब में एक्स एक्स ही रहेगा। ओके, इस तरीके से आप पहले पनेट स्क्वायर का गैमिट्स जो है वो आप लिख लेते हैं। ओके, जब आपने गैमिट्स लिख लिया उसके बाद आप ये लिखेंगे कि ये गैमिट और ये गैमिट यानी ये एग सेल और ये स्पर्म सेल जब फ्यूज करेगा तो कैसा इंडिविजुअल बनेगा, एक्स X0 बनेगा। और एक्स वाला जो एग है वो जब वाई वाला गैमिट, वाई वाला स्पर्म के साथ जब फ्यूज होगा तो उसमें कैसा प्रोजेनी आएगा, XY बनेगा। ओके, उसी तरीके से आप इधर देखेंगे X0 बनेगा और यहाँ पे XY बनेगा। ये वाला सब समझ गए, इसमें कोई डाउट है? हाँ सर, एक डाउट था सर। सर अगर फादर के बदले अगर मदर कलर ब्लाइंड होगी तो कौन सा X0 लिखेंगे? हाँ, हम लोग वो केस भी देखेंगे, ठीक, वो केस भी देखेंगे। तो अभी पहले ये वाला केस हम लोग देख रहे हैं। ये सिंपल पनेट स्क्वायर बनाने के बाद इसके गैमिट्स बना दिए, गैमिट्स के बेसिस पे आपने बना दिया कि जो अगला जनरेशन आएगा उसमें क्या कॉम्बिनेशन, ये आपने बना दिया। अब आप आंसर कर सकते हैं कि इसमें से क्या 100% सभी बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे? नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि जो डिफेक्टिव जिस क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंडनेस वाला मतलब डिफेक्ट था वो मदर में एक मतलब हाफ हाफ हो जाता है, तो एक मतलब फ्यूज होने का प्रोबेबिलिटी नहीं 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 नहीं, नहीं है ना मतलब। इतना लंबा चौड़ा आंसर मत दीजिए, आप सीधा पनेट स्क्वायर को देखिए और बताइए ये हमने क्यों बनाया, पनेट स्क्वायर किस लिए बनाया? सर क्योंकि सर ये सर दो सर सेट ऑफ द क्रोमोसोम डिफेक्टिव नहीं है सर और दो है। हाँ, तो यहाँ देखिए XY नॉर्मल है, ये X के ऊपर क्या X0 है? नहीं, तो XY जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा कि कलर ब्लाइंड रहेगा?
नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहेगा ना, इसके ऊपर x के ऊपर x0 नहीं है ना, ये तो नॉर्मल है। तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये लड़का होगा कि लड़की होगा, एक्स सर वाई। लड़का होगा सर। हाँ लड़का नॉर्मल, होगा सर। नॉर्मल बॉय। हाँ x से x0 क्या होगा, सर गर्ल, 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 कलर डॉटर, ब्लाइंड गर्ल होगी। डॉटर। ओके, अब इसमें क्या है, x से x0 है, तो वेदर कलर ब्लाइंड और नॉट, Sir, color blind. वही कलर ब्लाइंडनेस इज डोमिनेंट और रेसेसिव। Sir, recessive. हाँ, इस रेसेसिव। सो x0 जो है वो रेसेसिव है, और उसके बगल में तो नॉर्मल x है, ये तो डोमिनेंट है। जब ये डोमिनेंट है तो क्या कलर ब्लाइंड हो सकेगी? सर क्यों? कुछ क्योंकि हद सर तक नहीं आ रहा है प्रोबेबिलिटी तो है। समझ में सर, वो दोनों एक्स तो सर एक जैसा है सर, तो फिर डोमिनेंट और रेसेसिव कैसे पता लगा है? हाँ देखिए देखिए, सर आप बताए थे कि सर कलर ब्लाइंडनेस रेसेसिव जीन में होता है। हम्म, ठीक है, देखिए देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल चीज है। क्रोमोसोम एक्स ही है, और यहां पर भी एक्स है, लेकिन एक एक्स के ऊपर हमने x0 लिखा। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द क्रोमोसोम विथ रेसेसिव जीन और रेसेसिव एलील फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, और ये जो एक्स नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसका क्या हुआ, मतलब इसका ऑपोजिट होगा, ये डोमिनेंट होगा एलील इसमें फॉर नो कलर ब्लाइंडनेस। ओके, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन आर कॉल्ड एलील्स, करेक्ट। जो x0 है वो रेसेसिव है, हमने बता दिया कि ये जीन जो है, ये एलील जो है कलर ब्लाइंडनेस का, ये रेसेसिव है। रेसेसिव का मतलब है अगर ये एक ही कॉपी होगा वो एक्सप्रेस नहीं होगा, इसके दो कॉपी होने चाहिए, दोनों ही आपके होमोजाइगस जब रेसेसिव होंगे, होमोजाइगस रेसेसिव, तभी ये जीन एक्सप्रेस होगा। ये पॉइंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, होमोजाइगस यस सर। रेसेसिव। होमोजाइगस रेसेसिव यानी कैसे लिखेंगे इसको, x0 और फिर से x0, क्योंकि ये भी सर रेसेसिव है। सर हम्म, सर डोमिनेंट पहले लिखा जाता है या फिर रेसेसिव, मतलब ऑर्डर में लिखना पड़ता है या फिर कैसे भी लिख सकते हैं? आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि डोमिनेंट पहले लिखते हैं, रेसेसिव बाद में लिखते हैं। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी भी ओरिएंटेशन में लिखिए, बात बराबर है। ओके, सो होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब होमो यानी सेम। ओके, होमोजाइगस एक्स एक्स रेसेसिव। ओके, यानी x0 जो है वो रेसेसिव है, तो होमोजाइगस यानी दो टाइम इसमें अगर अगर ये जीनोटाइप है तो हमको बोलिए कि क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस रहेगा कि नहीं रहेगा? सर रहेगा। हर्षित आपका क्या कहना है, कलर ब्लाइंडनेस होगा कि नहीं होगा? सर होगा। होगा। आयुष टू आपका क्या कहना है? आयुष टू इज देयर? आयुष टू इज नॉट देयर, नो? सर आप ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, ज्वाइन नहीं किया। प्रणय? सर होगा। होगा ना, तो होगा इसीलिए होगा क्योंकि दो इट इज रेसेसिव, ये रेसेसिव है, लेकिन रेसेसिव का ही दो कॉपी, डोमिनेंट है ही नहीं। जब जीन कोई डोमिनेंट है ही नहीं, तब तो जो है वही एक्सप्रेस होना है। अब ये केस में देखिए क्या हो गया, ये केस में एक ही रेसेसिव कॉपी है और दूसरा कॉपी रेसेसिव नहीं है, वो डोमिनेंट है। तब एक्स एक्स तो डॉटर हुआ। अब ये बताइए कि क्या ये कलर ब्लाइंड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा भैया?
सर क्योंकि डोमिनेंट वाला रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देता। हाँ, डोमिनेंट वाला रेसेसिव को सर आपका आवाज सर बहुत धीरे आ रहा है सर, हम फिर से ज्वाइन करते हैं। ओके ना, अभी आ रहा है? सर आपका आवाज मेरे में सही आ रहा है, उसका शायद सर फोन में ज्वाइन करने में कुछ ग्लिच हुआ होगा। ओके ओके ओके, कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, कोई बात नहीं। तो x0 जो है दैट इज द डॉटर। ओके, x0 इज डॉटर, और यहां पे डोमिनेंट जीन है, इसीलिए रेसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, इसीलिए डॉटर विल नॉट बी कलर ब्लाइंड, नॉट कलर ब्लाइंड। ओके, लेकिन इसके पास वो जीन है, कलर ब्लाइंड तो ये नहीं है, लेकिन इसके पास कलर ब्लाइंड का जीन है। तो हम लोग ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? कैरियर। कैरियर, CARRIER, कैरियर। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस में नहीं बोलता है कि भाई इसको कोरोना तो नहीं है, मतलब सिम्टम्स तो नहीं है, लेकिन वायरस है इसके अंदर, ये एक कैरियर है। ठीक है, ये सर कौन सा सर? सर ये वाला एक्स प्राइम सर कैरियर होता है? हाँ, इट इज द कैरियर, ये कैरियर उसको है। समझ नहीं आया होगा सर, उसको शायद बीच में से समझाना होगा। हाँ नहीं ठीक है, इट इज इजी ओनली। तो देखिए इसमें क्या हुआ, x0 जो है इसमें x0 रेसेसिव है, लेकिन बगल में डोमिनेंट भी है, तो क्योंकि डोमिनेंट है रेसेसिव वाला तो एक्सप्रेस होगा नहीं। XX डॉटर है, ये कलर हाँ आप माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा। सो x0 जो है इट विल बी नॉट कलर ब्लाइंड, but it is having the gene for color blindness, therefore it is a carrier. Okay, the same thing here, XX0 daughter carrier, here also normal boy, here also normal boy. Okay, सर हाँ सर इसमें या तो सर नॉर्मल रहेगा सब लोग सर, या तो कैरियर रहेगा ना सर? तो मतलब कोई भी सर ऐसे कलर ब्लाइंड नहीं रहेगा? हाँ, इस कॉम्बिनेशन में जब बाप कलर ब्लाइंड है और मदर नॉर्मल है तो कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं हुआ। सर अगर दोनों, हाँ अब देखते हैं, अब देखते हैं, अब आप बनाइए। हाँ, अगर दोनों कलर ब्लाइंड है तो क्या पनेट स्क्वायर को यूज करके हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि क्या इनके बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे या नहीं होंगे? तो आप बनाइए पनेट स्क्वायर, इधर लिखिए मेल कलर ब्लाइंड, ठीक, और इधर लिखिए फीमेल कलर ब्लाइंड, ये भी कलर ब्लाइंड है। ओके, ये जो कलर ब्लाइंड है ये कैरियर कलर ब्लाइंड है। ओके, मीन्स एग्जैक्टली आई वोंट से कलर ब्लाइंड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैरियर। ठीक है, इसको आप बना दीजिए कैरियर। सर एक्स प्राइम आप कल बोल रहे थे। ये जो x0 है ना, x0 जो लिखते हैं ना, इसको जो प्रोनाउंस करते हैं इसको प्राइम बोलते हैं, x प्राइम। ओके, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं ना, डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, तो x0 जो ऊपर लिखते हैं हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं x0, बोलते हैं x प्राइम। ओके, अलग अलग तरीका है बोलने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जस्ट आई टोल्ड यू दैट इज द वे हाउ पीपल से। ओके, नाउ यू डू वन थिंग, नाउ व्हाट यू डू इज आप हमको प्रिडिक्ट करके बताइए, बना के बताइए कि फीमेल जो है कैरियर है, फीमेल इज कैरियर एंड मेल इज कलर ब्लाइंड। अब इनके बच्चों का कैसा रहेगा बताइए, बनाइए। मेल कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब इसका क्या जीनोटाइप होगा? XY क्रोमोसोम और X प्राइम होगा कि नहीं होगा? X प्राइम होगा। अब इसका गैमीट्स बनाएंगे आप, सर हम बना लिए। बना लिए, ठीक है। दिखा
दिखाओ। एक मिनट सर, फोटो खींच के फ्री शेयर कर दे क्या? ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में डाल दो, नहीं तो फिर अच्छा हमको सर। इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा ना प्रेजेंटेशन से। सो इसके गैमिट्स बनाएंगे। फीमेल इज ए कैरियर, ओके। जब फीमेल कैरियर है तो उसका कैसे होगा? एक्स सर एक्स, भेज दिया। हाँ, एक्स एक्स जीरो। लेकिन जो है प्रिंस है, यू हैव टू राइट द गैमिट्स। इफ यू डोंट राइट द गैमिट्स यू वोंट गेट फुल मार्क्स। एक्स एक्स जीरो, ओके, पहले गैमिट्स को लिखना है, ठीक है। अब आप ये गैमिट्स को क्रॉस कीजिए, एक्स और एक्स, ये एग सेल और ये स्पर्म सेल जब फ्यूज होगा, ओके, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। कुछ लोगों को उतना साफ समझ में नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये मेल है ना, तो स्पर्म सेल बना दिए, तो ये साइड पूरा मेल का है और फीमेल का ये तरफ एग सेल बना दिए, ठीक। तो जो एग सेल है या स्पर्म सेल है दोनों हैप्लॉइड है। अब जो इसमें एक्स वाला एलील है वो इसके साथ फ्यूज होगा, ओके, फ्यूज हुआ तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एक्स एक्स जीरो बनेगा कॉम्बिनेशन। यहाँ एक्स और वाई है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स वाई। यहाँ पे फिर एक्स जीरो और यहाँ पे एक्स प्राइम वाई, इस तरीके से बनेगा। इज इट करेक्ट? ओके, ऑल ऑफ यू मेड इट? सर हम भी बना लिए थे, सही है सर। ओके, चलिए, तो सभी सर लोग बना बस सर ये पूछना था सर, हाँ, सर ये एक्स प्राइम सर अगर ऊपर भी डाल देते सर, ये फीमेल वाले केस में अगर एक्स प्राइम ऊपर डाल देते हाँ, तो उससे सर कोई फर्क नहीं ना पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बना के कीजिए, आप वैसे ही बनाइए, हाँ सर तब भी सेम ही आ रहा था, इसी वजह से एकदम पूछे। एकदम एकदम सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये सर पनिश सर इसमें दो दो कैरियर है, एक कलर ब्लाइंड है और एक नॉर्मल बॉय है। हाँ, अब देखिए, अब एक्स एक्स जीरो जो है ये डॉटर हो गया एंड इट इज कैरियर, ओके, क्योंकि एक रेसेसिव और एक डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट जीन होने के कारण ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। एक्स वाई ये हो गया मेल, ओके, बॉय, एंड हियर इज नॉट कलर ब्लाइंड। सर नॉर्मल भी तो लिख सकते हैं। हाँ सॉरी, हाँ, वी कैन राइट नॉर्मल, ओके, एंड एक्स प्राइम है, दोनों दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर डिफेक्टिव जीन है। रेसेसिव है। हाँ, सो डॉटर एंड शी इज कलर ब्लाइंड। X prime Y, here it is male, that is the boy, and कैरियर। is going to be carrier or going to be color blind? सर कैरियर। कलर ब्लाइंड ही होगा सर। नहीं सर, सर एक्स रेसेसिव है ना सर? सर एक्स तो रेसेसिव है लेकिन वाई डोमिनेंट है यहाँ पे। सॉरी डोमिनेंट है। वाई डोमिनेंट का क्या मतलब होता है? वाई तो सर, अलग वही ही तो सर, Y वाई तो dominant है। डोमिनेंट नहीं होता है सर। सर रेसेसिव है तो सर ये लड़का भी ब्लाइंड ही होगा। अरे अरे भैया देखिए, एक्स और वाई अलग अलग क्रोमोसोम्स है ना। एक्स Yes, एक sir. अलग क्रोमोसोम है, इसके ऊपर अलग अलग जीन्स हैं कंपेयर टू वाई। एक्स और वाई तो एक क्रोमोसोम नहीं है। एक्स प्राइम जब हमने लिखा इसका मतलब एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, ठीक। Yes, sir. क्या डोमिनेंट जीन है क्या वाई में कलर ब्लाइंडनेस का? कलर ब्लाइंडनेस का जीन तो वाई में रहता ही नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस का हाँ जीन सर। तो एक्स में रहता है, वाई में तो रहता ही नहीं है। हाँ सर। तो भैया इसका डोमिनेंट कहां से आ गया? तो यहाँ पे जो है केवल एक ही जीन है कलर ब्लाइंडनेस का, वो भी एक्स के ऊपर,
तो वही एक्सप्रेस होगा। उसको तो सप्रेस करने के लिए उसको दबाने वाला तो और कोई दूसरा जीन है नहीं, नॉर्मल जीन है तो नहीं। कलर ब्लाइंड ही रहेगा ना सर? हाँ, इसीलिए वो कलर ब्लाइंड ही होगा। ये पॉइंट आप समझे? यस सर। हाँ, किसी को डाउट है इसमें? ध्यान दीजिए आप, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है जो कि रेसेसिव है। रेसेसिव का मतलब है कि वो एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन उसके साथ कौन सा है? वाई है। वाई तो अलग क्रोमोसोम है, इसके ऊपर तो कलर ब्लाइंडनेस का जीन रहता ही नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि यही एक जीन है ही यहाँ पे, तो जब एक ही यही जीन है तो वही एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पे जो है एक्स प्राइम वाई में ये बॉय है एंड इज कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो अब आपका जो क्वेश्चन था कि अगर मेल कलर ब्लाइंड है और फीमेल कैरियर है तो क्या होगा? अब आप बताइए। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय, तो क्या क्वेश्चन है? ये जो क्वेश्चन है कि मेल अगर कलर ब्लाइंड रहेगा और फीमेल कैरियर रहेगा तो क्या होगा सर? क्वेश्चन किसका था? सर मेरा था। प्रिंस पता। हाँ, प्रिंस तुम्हारा था। तो आप बताओ, रिजल्ट बताओ इसका। पनेट स्क्वायर को सर देखो और रिजल्ट बताओ। सर एक डॉटर कैरियर है, एक बॉय नॉर्मल है, और वैसे एक वैसे डॉटर वैसे 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 नहीं बोलते हैं। आंसर आप बताओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सभी कलर ब्लाइंड हैं? नो सर। ऑल आर नॉर्मल? नो सर। Okay, then you tell how much percent, yeah, how much ratio is color blind and how much is normal? तो 50-50। 50-50। कैरियर नॉर्मल रहता है कि कैरियर कलर ब्लाइंड रहता है? नॉर्मल रहता। नॉर्मल रहता है। हाँ, सभी लोग ध्यान दीजिए, ये जो कैरियर है ना, यहाँ पे डॉटर कैरियर, वो क्या कलर ब्लाइंड रहता है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं रहता है, ये भी नॉर्मल ही दिखेगा। तो डॉटर जो है इसको सब कुछ नॉर्मल दिखाई देगा। तो ये नॉर्मल है, दो केसेस नॉर्मल हैं, यहाँ दो केसेस कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब 50% नॉर्मल एंड 50% कलर ब्लाइंड। ओके, तो ये इसका रिजल्ट होगा। और जो लड़के हैं, कितने परसेंट लड़के कलर ब्लाइंड होंगे? सर 50-50 है। 50, हाँ, 50% ऑफ द बॉयज विल बी कलर ब्लाइंड, 50% विल बी नॉर्मल। सेम चीज होगा डॉटर्स के साथ, 50% नॉर्मल, 50% कलर ब्लाइंड। ओके, ये वाला आप समझ गए? इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। सर जो इसको, कलर ब्लाइंड रहता है वो कैरियर सेल्स भी तो कैरी कर रहा है ना अपने साथ। हाँ, जो कलर ब्लाइंड है उसके क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस वाला एलील होगा। सर एक और क्वेश्चन था सर, हाँ, पूछे हैं। पूछिए। सर आप बोले कि सर ये कलर ब्लाइंड ब्लाइंड वाला जो सर है सर, ये बस एक्स क्रोमोसोम पे रहता है। हम्म तो क्या ये पॉसिबल है कि फीमेल में सर दोनों एक्स पे ये प्रेजेंट रहे? हम्म ये वाला देखिए, जो नीचे वाला डिब्बा है, एक्स प्राइम दोनों में आ गया। इसीलिए ये जो डॉटर है वो कलर ब्लाइंड हो गई। सर तो सर सर अगर अगले मेल पनेट स्क्वायर में सर अगर ये वाला बनाएंगे तो फीमेल के सर दोनों तरफ तो एक्स प्राइम डाल देंगे ना सर? नहीं समझे, क्या बोला? सर सर ये अगला पूछ अगर रहा है कि हम पनेट स्क्वायर से बनाएंगे ये कलर ब्लाइंड डॉटर का, सर तो उसमें सर दोनों एक्स जो फीमेल साइड में कैरियर जो आप लिखे हुए हैं सर, इसमें तो दोनों एक्स के साइड एक्स प्राइम आ जाएगा ना सर? कहीं ना कहीं हम आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, एक बार फिर बताइए। सर ये जो सर आप प्रेजेंटेशन किए हैं सर, हाँ हाँ, सर इसमें लेफ्ट साइड में सर फीमेल कैरियर वाला है ना सर, करेक्ट दोनों करेक्ट। तरफ सर। हाँ सर, सर तो अगर हम ये ब्लाइंड डॉटर का बनाएंगे सर तो ऊपर वाले में भी एक्स प्राइम आ जाएगा ना सर? ओके, तो यहाँ पे हमने लिया है एग्जाम्पल फीमेल कैरियर। हमने यहाँ पे फीमेल कलर ब्लाइंड बोल के नहीं लिया। कारण इसमें है एक, बिकॉज
ये जो पर्टिकुलर है केस कलर ब्लाइंडनेस का हो या हीमोफीलिया का हो, दोनों ही केसेस रेयर होते हैं, दोनों ही केसेस रेयर हैं। एंड the rare cases of the hemophilic males, okay, they occur, but practically hemophilic females is like there is rare का रेयरेस्ट है। हाँ, रेयर का रेयरेस्ट है आपका ये फीमेल हीमोफिलिक। तो देखिए होता क्या है ना, ये जो जीन है रेसेसिव जीन है ना, okay, Ayush 2 is calling, okay, oh, he's not there in the class, okay. So हीमोफीलिया हो या कलर ब्लाइंडनेस हो, दोनों का जीन्स रेसेसिव है। तो प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने सोचा कि कुछ जीन्स जो हैं, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि रेसेसिव हैं। तो होता क्या है कि जब तक उसके दोनों रेसेसिव नहीं आएंगे वो एक्सप्रेस नहीं होगा। और ये क्या होता है कि रेसेसिव वो दोनों, जैसे कि कोई कलर ब्लाइंड पर्सन है, वो जल्दी से नहीं चाहेगा शादी करना किसी से जो कि कलर ब्लाइंड है, ओके। जो हीमोफीलिया ऑलरेडी है किसी को, वो जल्दी से नहीं शादी करेगा किसी के साथ जो हीमोफीलिया है। तो प्रकृति में ऐसा हुआ कि जल्दी से जो है ये दोनों जीन्स का आपको होमोजाइगस रेसेसिव नहीं बनता है, तो वेरी रेयर हो जाता है। तो ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, कैरियर मिलेगा, फीमेल में ज्यादातर कैरियर मिलेगा। और मेल के साथ तो प्रॉब्लम है भैया, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर उसमें आ गया जीन तो हो गए कलर ब्लाइंड। समझ गए? सर अगर फीमेल भी कलर ब्लाइंड होगी तो 100% बच्चा है कलर ब्लाइंड हो जाएगा ना? हाँ, तो इसका आप बना के ट्राई कीजिए ना। आप क्या कीजिए, इसको एक्स प्राइम दोनों गेमिट से उसके आप बना दीजिए एक्स सर प्राइम। बना लिए सर, सर 2 कैरियर नहीं सर, सर सारा वही निकला, क्या निकला? तो सारा कलर ब्लाइंड हो गया सर। सारा कलर ब्लाइंड हो गया। ठीक है, देखिए अभी फटाफट बना देते हैं हम भी, x0 y 100% कलर ब्लाइंड। हाँ आयुष, रिमूव, ओहो, तुम्हारे 2 नंबर्स थे ना? ओह अच्छा, वही प्रॉब्लम हुआ। तो हमने क्या किया कि जो 2 नंबर से है ना, उसमें से एक नंबर हटाया, तो शायद ये जो दूसरा नंबर था उसमें लास्ट कम्युनिकेशन हुआ था, तो हमने प्रीवियस नंबर हटा दिया। तो बोला कि सब ग्रुप में तो बहुत सारे नंबर आ गए थे। अच्छा, तो वो मैसेज तुमको पहले नहीं आया था क्या, लिंक वाला? ओह ओके। अच्छा, हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, हम वो आज का रिकॉर्डिंग है वो हम दे देंगे, वो आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नेटवर्क हम किसी तरीके से चला रहे हैं, अभी दूसरे मोबाइल से कर रहे हैं। ठीक है, आज का स्टेबल है, एक बार ही कटा है। ओके, हाँ, ओके, हाँ, ठीक है, हाँ, थैंक यू। सो इसमें क्या हुआ एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट, 100% कलर ब्लाइंड। यस, ऑल डॉटर्स एंड ऑल सन्स आर कलर ब्लाइंड। तो देखिए ये बहुत अच्छा चीज है, ये जो पनेट स्क्वायर है ना, ये आपको क्या पावर देता है, प्रेडिक्ट करने का पावर देता है कि अगर माँ बाप के अंदर ये वाले क्वालिटीज हैं तो अगले जनरेशन में कैसा उनका फिनोटाइप रहेगा, जीनोटाइप रहेगा, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ओके हम लोग जाएंगे मेंडल के इसमें एक्सपेरिमेंट्स में, जिसमें कि आप देख रहे हैं ना पेज नंबर 31 में भी पनेट स्क्वायर बना हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में ना कभी पनेट स्क्वायर बनाता है, कभी झिंगड़ मिंगड़ ये सब लाइन वाइन बनाता है, ये सब फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है अपने को। यू हैव टू फॉलो पनेट स्क्वायर, एक ही स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए, एक नंबर आपको पूरा समझ में आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फॉर द प्रेजेंट क्लास सर एनी डाउट्स इसका यू हैव, यू आस्क। नहीं सर, सर अब सर ये पूछ रहे थे सर, अब इस चैप्टर को खत्म होने में सर कितना क्लासेस लग जाएगा?
ये थोड़ा सा आपको जेनेटिक्स वाले में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें टर्म्स हाँ बहुत सर। ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं। और इसमें अगर मैं स्पीड भागूंगा भी तो आपको पूरे बाउंसर पे बाउंसर जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि लगभग एक पेज पे एक क्लास जा रहा है हम लोग का, एक पेज पे एक क्लास जा रहा है लगभग। तो अभी जो है मेंडल्स जेनेटिक्स वाला जो है ये आपका एक क्लास में खत्म होगा। उसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो आधा क्लास में खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हम लोग वो सेकंड क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे बैक ऑफ द चैप्टर का, और उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा अगले सप्ताह में। अगले सप्ताह में आपका जेनेटिक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, कल परसों जो है केमिस्ट्री करेंगे। सैटरडे हम लोग टेस्ट करेंगे बायोलॉजी का, वी विल डू द टेस्ट। ओके, वो गूगल क्लासरूम ठीक है में बना सर। के, हाँ गूगल क्लासरूम बना के मैं भेजूंगा, उसमें हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए, ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। Try to please Thank all you, of you, sir. please all of you come on time, 7 o'clock means be punctual, 7 o'clock. Okay, okay, see you all, bye.